Good afternoon, students. We are on the fourth chapter, effect of electric current. So, in the effect of electric current, we will see how energy transform in electric bulb. You know very well the above things. How do we decide the given material is a good conductors or electricity or in an insulators? किस तरह से हम लोग डिसाइड करेंगे कि गुड कंडक्टर से इंसुलेटर से क्या नहीं. जो इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट तुम लोग ऑब्जर्व करो कि सिंपल फिगर्स में तुम लोग को पता चल जाता है. द अबव फिगर ऑब्जर्व व्हाट डू यू ऑब्जर्व इन द फॉलोइंग पिक्चर्स एंड विच इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट डू यू फाइंड. किस तरह से बोलते हैं अपने को फाइंड आउट कर सकते हाउ वी कैन फाइंड द इलेक्ट्रिक करंट इन द अबव पिक्चर्स. तो फर्स्ट सी हाउ एनर्जी ट्रांसफ़र इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट. हम लोग देखते कि एनर्जी किस तरह से ट्रांसफ़र होती है इलेक्ट्रिक सर्किट में. अ सिंपल एन एग्जांपल जस्ट सी मटेरियल्स आर देयर. Conducting wire, just take electric cells, electrical resistance, voltmeter, ammeter and plug key. Now procedures, just look the figure here on page number 48. In the page number 48 4.2 figure they given. Just look VAB. So first connect the circuit as shown in the 4.2. After taking the component of the proper value, एक proper value लेने की है अपने को. And measure the current. First you have to measure the current and also measure the potential difference of VAB. जो मेजर करना है पोटेंशियल डिफरेंस कितना है. तो फर्स्ट यू विल कनेक्ट विथ व्हाट आई फर्स्ट यू विल टेक द वायर, यू विल कनेक्ट विथ A to B एंड द रेजिस्टेंस एंड देन यू विल कनेक्ट विद द वोल्ट मीटर ऑल्सो एंड द एमामीटर जो करंट रहता है. करंट हम लोग पास करेंगे तो तुम लोग पता चल जाए. देन यू विल कम टू नो हाउ मच इन इफ़ यू कैन हाउ मच करंट यू आर सप्लाइंग इन द वॉट एवर द करंट यू आर सप्लाइंग यू आर कमिंग टू नो फ्रॉम द एमामीटर. तो मेजर द करंट, also measure the potential difference in AB and just take the two end of the resistance. मतलब दो end है A to B but A to B direct दो end नहीं है. That you have to connect with the cell also, then you have to connect with the ammeter, then you have to connect with the voltmeter, that is VAB. जो voltmeter देख रहे ना VAB and then V you are also looking there. तो first VAB, that is the potential difference and that the two end of the resistors. First whatever the point A is the higher potential difference and point B is the lower. The point A is always higher they are telling and point B compared to the point A. तो point A you are connecting with the positive electrode. जो point A positive electrode से connect किया है और point B मेरा negative electrode से connect किया है. तो whatever the charge will flow, जब current पास होगा तो charge flow होगा from A to B. मेरा A से B तक मेरा charge flow होने वाला. whatever the charge will flow from A to B, तो whatever the work done will be there. Volt into Q, that is potential difference into charge. Now whatever the work has done, तो whatever the work जो बोलते हैं ना work done हुआ कैसे हुआ, that is potential difference into Q. तो ये Q while going from AB जो चार्ज रहता है A से B तक जाने के लिए, that we have seen in the chapter 3 and in the that is in the standard 9, that is current electricity. तो whatever the energy are coming from the work, जो energy आती है ना work done की, वो कहाँ से आती है, that is from the current and from the voltmeter. तो वॉट एवर द सोर्स ऑफ द एनर्जी आर दैट, जो सोर्स ऑफ एनर्जी रहती है ये सेल से आएगी अपनी, जहाँ से पोटेंशियल डिफरेंस मेरा रहता है. द सेल्स गिव द एनर्जी, जो सेल्स रहता है एनर्जी रह देता है. ना डिपेंडिंग ऑन द सेल इज फ्रॉम द हाउ मच वोल्ट आर देयर, सेल्स कितने वोल्ट का है वो भी डिपेंड करता है. हाउ मच सेल्स यू आर कनेक्टिंग दैट ऑल्सो डिपेंडिंग. दैट्स वाई दे आर टेलिंग इन द चैप्टर 3 स्टैंडर्ड 9 दैट वी हैव सीन. वहाँ पे देखे थे हम लोग ने रजिस्टर इन सीरीज, रजिस्टर इन पैरेलल, वहाँ पे कितने सेल्स हम लोग ने कनेक्ट किए थे, दैट दे आर टेलिंग हियर. तो यहाँ पे पोटेंशियल जो वर्क डन से दैट इज वोल्ट इनटू चार्ज परफॉर्म. तो ये द कार्ज जो चार्ज विल फ्लो फ्रॉम A to B, जो चार्ज रहेगा ना A से B तक फ्लो होने वाला है एंड इट विल फ्रॉम अ प्रॉपर टाइम. बोलते हैं ना टाइम लगता है इन T टाइम, मतलब A से B तक जो बोल रहा है ना चार्ज फ्लो हो रहा है तो एक टाइम लगेगा, दैट विल टेक अ टाइम. तो वॉट एवर द वर्क डन परफॉर्म इन टाइम T, जो वर्क डन रहेगा एक प्रॉपर टाइम तक होने वाला है. So during that time the energy, whatever the energy are there, that is VAB into Q, that give the is given in the registers. वो registers में बता रहा है, जो R देख रहे हैं ना वो registers है. What happened to this energy? एनर्जी में क्या होगा? The energy is received by the resistance. बोलते हैं ना जो एनर्जी रिसीव होगा किससे, रेजिस्टेंस से रिसीव हो रहा है and that will convert into the heat energy. ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा. एंड द टेम्परेचर ऑफ द रेजिस्टेंस, जो टेम्परेचर है ना रेजिस्टर्स का एकदम इंक्रीज होने वाला है. नाउ इफ इन द सर्किट, जो सर्किट को हम लोग बोलते हैं ना रजिस्टर को रिप्लेस करते हैं मोटर से, तो इन विच फॉर्म ऑफ द एनर्जी गिवन बाय द सेल गेट ट्रांसफॉर्म.
तो अगर मोटर से मैं रिप्लेस करूँगा तो मोटर तो एक तरह का मैकेनिकल में आ जाएगा, मशीन में आ जाएगा, तो दैट विल ट्रांसफर इनटू मैकेनिकल एनर्जी. तो फर्स्ट पावर इक्वल टू व्हाट? इलेक्ट्रिक पावर, एनर्जी अपॉन टाइम, एंड एनर्जी वी हैव सीन वोल्ट इनटू क्यू, दैट इज voltage into चार्ज अपॉन टाइम. बट क्यू अपॉन टी इज एन करंट. क्यू अपॉन टी किस में आता है? करंट में आता है. तो पावर इक्वल टू वोल्ट इंटू आई. तो वॉट एवर द सोर्स ऑफ एनर्जी इज देयर, द सेल्स गिव्स इन टाइम टी. बोलते हैं जो सेल्स रहता है एक प्रॉपर टाइम तक रहता है, वर्क होता है. द एनर्जी इज़ वॉट? पी इंटू टी. जो एनर्जी रहेगी ना, पावर इंटू टाइम रजिस्टर तक देने वाला है. तो इफ़ आई इज़ द करंट फ्लोइंग थ्रू द कंटिन्यूस, अगर आई मेरा कंटिन्यूसली फ्लो हो रहा है सर्किट में, तो वॉट एवर द हीट प्रोड्यूस इन द रजिस्टर, जितना भी हीट प्रोड्यूस हो ना रजिस्टर्स में टाइम टी तक, तो ये हीट दे आर टेलिंग इज़ वॉट? पावर इंटू टाइम टी. पावर इंटू टी, जो हीट रहेगा कितना पावर है और कितने टाइम तक फ्लो हो रहा है. बट पावर वी हैव सीन इज़ वॉट? वी आई. पावर हम लोग ने ऊपर देखे हैं इक्वेशन नंबर 1 में, दैट इज़ वी इंटू आई इंटू टी. बट अकॉर्डिंग टू हम लॉ, और हम लॉ अपने को पता है v इक्वल टू आई आर होता है. तो v को मैं रिप्लेस कर सकता हूँ आई आर से. हाँ, v को मैं रिप्लेस कर सकता हूँ आई आर से. तो इफ़ आई विल रिप्लेस विथ आई आर तो इट विल बी आई स्क्वायर आर टी. और इफ़ आई विल रिप्लेस विथ आई को अगर मैं रिप्लेस करता हूँ तो मेरा क्या हो जाएगा? v अपॉन आर हो जाता है. तो आई के प्लेस में क्या, अगर मैं v अपॉन आर पुट करता हूँ तो वी स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर इंटू टी बाई आर हो जाता है. हाँ, इन प्लेस ऑफ आई विल पुट अ v अपॉन आर. तो इट विल कम एज एन v इंटू वी अपॉन आर इंटू टी, दैट इज वी स्क्वायर इंटू टी आर. बट इफ़ आई विल रिप्लेस v विथ आई आर, अगर v को मैं आई आर से रिप्लेस करता हूँ तो आई आर इंटू आई इंटू टी, दैट विल बिकम आई स्क्वायर आर टी. तो हीट दे टेलिंग इज इन अ डिफरेंट फॉर्म्स. रिमेंबर, हीट जो होती है डिफरेंट फॉर्म में होती है. एक तो पावर इंटू टी, दैट इज़ वी आई टी, और सेकेंड थिंग अकॉर्डिंग टू रेजिस्टेंस वी स्क्वायर इंटू टी बाई आर, एंड अकॉर्डिंग टू करंट इफ़ यू विल सी आई स्क्वायर इंटू आर टी. दिस वी आर टेलिंग इज एन जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग. इसको हम लोग जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग बोलते हैं. हाँ, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग बोलते हैं. कूलम्स लॉ में 4.18 आ जाता है सब में. नाउ यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर. अब यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर देखते हैं. पावर में देखते हैं v इंटू टी है. तो पावर तो क्या है? v इंटू टी. v तो वोल्टेज का होता है और I तो कर एम्पियर का बता रहा है. पावर क्या बता रहा है? v इंटू आई बता रहा है. तो v मतलब वोल्टेज एंड I मीन्स एम्पियर, दैट इज v बाई ए. तो वन वोल्टेज दे आर टेलिंग एज एन वन वोल्टेज इंटू वन एम्पियर इज वॉट? दे आर टेलिंग वन वोल्टेज इज वॉट? 1 जूल अपॉन 1 कूलम, एंड एम्पियर इज वॉट? 1 कूलम अपॉन 1 सेकेंड, दैट इट इज़ जूल पर सेकेंड. हाँ, वोल्टेज मेरा क्या आ जाएगा? वॉट क्या आ जाएगा मेरा? जूल पर सेकेंड में आ जाएगा. तो यूनिट ऑफ वी कैन से इलेक्ट्रिक पावर इज़ वॉट? वॉट. जो पावर का इलेक्ट्रिक यूनिट क्या है? वॉट आता है. तो वी हैव सीन पावर तो अक्सर हम लोग वॉट में ही मेजर करते हैं. तो पावर, यूनिट ऑफ पावर इज़ वॉट? वॉट दे आर टेलिंग. तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. अब हीटिंग इफेक्ट क्या होता है इलेक्ट्रिक करंट का? तो जस्ट लू, व्हेन अ रजिस्टर इज़ कनेक्टेड इन इलेक्ट्रिक सर्किट, जो रजिस्टर हम लोग कनेक्ट करते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट में, तो हीट इज़ प्रोड्यूसेस. तो उसमें क्या होता है? हीट प्रोड्यूस होता है. एंड बिकॉज ऑफ दैट, ड्यू टू दैट करंट, हीट क्यों प्रोड्यूस होता है? बिकॉज ऑफ द करंट. दिस इज़ नोन एज एन हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. इसको हम लोग हीटिंग इफेक्ट बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट का. तो रजिस्टर को मैंने किससे कनेक्ट किया? इलेक्ट्रिक सर्किट से कनेक्ट किया. और जब इलेक्ट्रिक सर्किट से कनेक्ट किया तो हीट फ्लो होने वाला है. और हीट ऐसे तो फ्लो नहीं होने वाला है, उसमें से करंट पास हो रहा है. And because of that we are telling heating effect of electric current. Now just take an equipment or such as water boiler is there, electric cooker are there, electric bulb are there. In all this we are using as an heating effect of electric circuit. ये सारी चीज़ों में heating effect of electric circuit में आता है. इलेक्ट्रिक सर्किट होता है ना, इलेक्ट्रिक करंट आता है. बट ये ओनली ये सर्किट ही नहीं है, बहुत सारे डिफरेंट भी है जहाँ पे भी और बोलता है ना हीटिंग इफेक्ट ऑफ, देयर आर डिफरेंट थिंग्स आर ऑल्सो देयर. इन दैट ऑल्सो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट आर कमिंग. नाउ इलेक्ट्रिकल कंडक्टर हैविंग हायर रेजिस्टिविटी. अब इसमें जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टर रहता है, कंडक्टर मैंने बताया कॉपर, सिल्वर, जो बोलता है ना कॉपर, एल्यूमिनियम, ये सब चीज़ें होती है, तो इसकी रेजिस्टिविटी एकदम ज़्यादा हाई होती है. आर यूज्ड ईयर. तो इसमें जो इलेक्ट्रिक मोटर देख रहे हैं, वाटर बॉयलर देख रहे हैं, इलेक्ट्रिक बल्ब देख रहे हैं, इसकी इलेक्ट्रिक बोलते हैं ना, इसकी जो रेजिस्टिविटी है, हाँ, ईयर द रेजिस्टिविटी इज़ वेरी हाई. फॉर एन एग्जाम्पल, अ कॉइल मेड अप ऑफ द alloy
नाइक्रोम इज़ यूज़, बोलते हैं ना जो एलॉय का रहता है बनाते हम लोग, जो कॉयल की बोलते हैं ना, जो कॉयल बोलते हैं ना जो एलॉय की बनती है उसमें नाइक्रोम यूज़ करते हैं इन एन इलेक्ट्रिक हीटर कुकर। तो नाइक्रोम इज़ यूज इन द इलेक्ट्रिक हीटर कुकर एज एन रेजिस्टेंस, इसमें नाइक्रोम यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिक हीटर कुकर जो रहता है। वाइल अ टंगस्टन वायर इज़ यूज इन अ इलेक्ट्रिक बल्ब, इलेक्ट्रिक बल्ब तुम लोग ने देखे होंगे, तो उसमें एक पतला सा वायर रहता है, इनसाइड दैट सम ऑफ द वायर टाइप इज दैट इज टंगस्टन वायर आर देयर। Because of that this temperature, we can say because of the current, the wire get and heated nearly 3400 डिग्री सेल्सियस। अब उसमें जब करंट पास होता है ना तो उसकी रेजिस्टिविटी बोलते हैं ना, द करंट मीन्स वॉट एवर द हीटिंग इफेक्ट आर देयर ऑफ द 3400 डिग्री सेल्सियस, उसका हीटिंग इफेक्ट कितना रहता है 3400 डिग्री सेल्सियस तक उसकी हीटिंग इफेक्ट रहती है। एंड दैट एमिट लाइट, एंड बिकॉज ऑफ दैट द लाइट इज एमिटेड, उसकी वजह से क्या होता है एमिट लाइट एमिट होती है। बिकॉज क्या बता रहा है जो करंट, बिकॉज ऑफ द करंट दे आर टेलिंग द वायर गेट हीटेड, जो उसके अंदर का वायर जो रहता है ना 3400 डिग्री सेल्सियस तक की हीट बर्दाश्त कर सकता है और लाइट एमिट होती है। द हॉट वायर ऑल्सो रेडिएट हीट टू अ सर्टन एक्सटेंट, जो हॉट वायर अंदर का रहता है ना उसकी हीटिंग इफेक्ट भी रहती है एक सर्टन एक्सटेंट तक। तुम लोग ने यू हैव ऑब्जर्व इन डे टू डे लाइफ वॉट एवर द यू आर यूजिंग 60 वाट बल्ब 80 वाट बल्ब इन योर हाउसेज, तो व्हाट काइंड ऑफ द सराउंडिंग यू आर गेटिंग, पूरे सराउंडिंग में तुम लोग को लगेगा जैसे कि इन योर सराउंडिंग यू आर ऑब्जर्विंग लाइक मोर हीट इज़ देयर, सराउंडिंग में लगेगा तुम लोग को लगेगा घर में थोड़ी गर्मी ज़्यादा बढ़ रही है, क्योंकि पावर की बोलते हैं ना, पावर के अंदर जो वायर्स की बोलते हैं ना जो टंगस्टन वायर रहता है उसकी हीटिंग इफेक्ट कहाँ तक कितनी रहती है 3400 डिग्री सेल्सियस तक रहती है। तो अपने सराउंडिंग में क्या हो जाता है, ऐसा लगता है जब हम लोग बल्ब जलाते हैं तब 60 वोल्ट रहता है, 80 वोल्ट रहता है, 100 वोल्ट का बल्ब रहता है, but nowadays we are using a different kind of the bulb, remember। तो इलेक्ट्रिक पावर दे आर टेलिंग एज एन what 1 watt, एक इलेक्ट्रिक पावर तो 1 watt कितना रहता है बहुत स्मॉल रहता है। हेंस 1000 watt दैट इज किलो वाट वी आर यूजिंग इन अ टू मेजर एज एन इलेक्ट्रिक पावर, 1000 watt यूज़ करते हैं दैट इज वी आर टेलिंग एज एन 1 किलो वाट, हम लोग इसको इलेक्ट्रिक पावर में यूज़ करते हैं मेजर करने के लिए। इन प्रैक्टिस वी आर टेलिंग एज एन 1 किलो वाट पावर इज़ वॉट 1 hour इज़ यूज फॉर 1 hour। मान के चलो प्रैक्टिस में 1 किलो वाट में बोलते ना पावर मैं यूज़ कर रहा हूँ 1 hour के लिए, दैट मीन्स 1 किलो वाट इंटू 1 hour ऑफ द इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज़ दैट, दैट इज सी इन इक्वेशन 1, उसने इक्वेशन 1 में बताया ऊपर में। हाँ 1 watt इज़ दैट एज एन अबव इक्वेशन दैट यू आर लुकिंग, पावर इक्वल टू वॉट एनर्जी अपॉन टाइम, हाँ एनर्जी अपॉन टाइम दैट इज़ 1 किलो वाट इंटू 1 hour। तो 1 किलोवाट 1 hour इज एट वॉट 1000 watt इंटू 3600 सेकेंड, तो 1 किलोवाट आर इज वॉट 3.6 इंटू 10⁶ watt सेकेंड, दैट इज 3.6 इंटू 10⁶ जूल, इतना 1 किलोवाट आर का रहता है। नाउ सेवरल वी हियर और वरीड अबाउट द बिल्डिंग कैचिंग फायर, बहुत टाइम यू हैव सीन लॉट ऑफ द टाइम दैट वी कैन से फायर हैज़ बीन कैचेस बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, और वी कैन से बिकॉज ऑफ द शॉर्ट सर्किट, कभी कभार घर में शॉर्ट सर्किट होता है। इन योर हाउसेस यू हैव सीन द शॉर्ट सर्किट्स आर देयर, द फायर कैचेस। समटाइम वी स्विच ऑन इक्विपमेंट इन एन हाउस, बोलते हैं ना कभी कभार हम लोग क्या करते हैं इक्विपमेंट यूज़ करते हैं हाउस में, स्विच ऑन करते हैं। द इलेक्ट्रिक फ्यूज़ वायर मेल्ट, बोलते हैं ना जो इलेक्ट्रिकल फ्यूज़ वायर क्या रहता है, फ्यूज़ तो देखे होगे इन एवरी टाइम इन योर हाउस फ्यूज़ आर देयर, तो सम ऑफ द टाइम भी डायरेक्टली फ्यूज़ बोलते हैं ना, फ्यूज़ बोलते हैं ना स्विच ऑन करते हैं तो फ्यूज़ क्या हो जाता है मेल्ट हो जाता है, तो फ्यूज़ का वायर क्या हो जाता है ब्रेक हो जाता है, शट डाउन, एंड द वॉट एवर द इलेक्ट्रिसिटी हैज़ बीन शट डाउन, इलेक्ट्रिसिटी नहीं रहती है। नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट ब्रीफली क्या होता है द होम इलेक्ट्रिकल इंसेक्ट, बोलते हैं ना द होम इलेक्ट्रिकल कनेक्शंस, जो अपने होम इलेक्ट्रिकल बोलते हैं ना कनेक्शंस में एक लाइव न्यूट्रल और अर्थिंग वायर रहते हैं, 3 वायर रहते हैं, एक लाइव वायर है, न्यूट्रल वायर है और अर्थिंग वायर है। द लाइव एंड द न्यूट्रल वायर हैव द पोटेंशियल ऑफ द 220 वोल्ट, जो लाइव वायर है और न्यूट्रल वायर है उसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना बताया है 220 वोल्ट इन योर हाउस। द अर्थ इज़ कनेक्टेड टू द ग्राउंड, जो अर्थिंग वायर जो रहता है वो ग्राउंड से कनेक्टेड रहता है। एंड ड्यू टू अ फॉल्ट इन द इक्विपमेंट, जो बोलते हैं कभी कभार कुछ फॉल्ट होता है, हाँ, और इफ़ द प्लास्टिक कोटिंग टू द लाइव एंड द न्यूट्रल वायर गिव्स अवे, जो बोलते हैं ना जो प्लास्टिक कोटिंग रहती है, जो इंसुलेटर जो रहता है जो हम लोग बोलते हैं, जो लाइव और न्यूट्रल वायर बोलते हैं ना गिव्स अवे, बोलते हैं ना दोनों वायर द 2 वायर्स कनेक्ट बोलते हैं ना कम इन कॉन्टैक्ट विथ ईच अदर, दोनों वायर क्या बोलते हैं ना एक दूसरे से कॉन्टैक्ट में आ जाते हैं लाइव और अर्थिंग वायर में। एंड बिकॉज ऑफ दैट लार्ज करंट आर फ्लो, उससे क्या होता है एकदम ज़्यादा करंट फ्लो हो जाता है, एंड द हीट इज प्रोड्यूसिंग्स। एंड इफ एनी इन्फ्लेबल मटीरियल्स सच एज वुड क्लोथ एंड प्लास्टिक्स एग्जिस्ट अराउंड द
प्लेस, बोलते हैं ना अगर बाजू में जैसे कि लकड़ा वुड है, क्लोथ है, प्लास्टिक्स है, अब जब फायर कैच होने वाला रहता है तो अगर इसके कांटेक्ट में आया है, मतलब इनफ्लेमेबल दे आर टेलिंग एज एन वुड, क्लोथ, प्लास्टिक एंड डिफरेंट थिंग्स आर देयर हायर। तो बोलते हैं ना जब टू वायर्स, बोलते हैं ना ये जो न्यूट्रल वायर बताया और लाइव वायर एक दूसरे से कांटेक्ट में आते हैं तो फायर कैच हो जाते हैं, और फायर जब कैच होती है तो वुड, क्लोथ और प्लास्टिक सराउंडिंग में तो इजीली फायर इस पे भी कैच हो जाती है सराउंडिंग्स पे। देयरफॉर अ फ्यूज वायर इज़ यूज फॉर प्रिकॉशनरी, हम लोग फ्यूज वायर यूज़ करते हैं प्रिकॉशनरी में। दिस फ्यूज वायर डायरेक्टली वी लर्न अबाउट द फ्यूज वायर इन द प्रीवियस स्टैंडर्ड, 9th स्टैंडर्ड में तुमने लर्न की है कि फ्यूज़ वायर क्या होता है। अगर थोड़ा भी बोलते हैं ना शॉर्ट सर्किट होता है वायर में, बोलते हैं ना, तो डायरेक्टली फ्यूज़ क्या हो जाता है, शट डाउन हो जाता है। नाउ इट इज़ यू हैव सीन द फ्यूज़ ऑफ द डिफरेंट टाइप्स। फ्यूज़ बोलते हैं ना अपना, तुम लोग ऑब्जर्व कर रहे हो, जस्ट सी द फिगर ऑफ दी पेज नंबर 50 डू यू नो वाले में ऑब्जर्व करो, ये फिगर वाले में वहाँ पे देखो MCB दिया है, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर्स। अगर थोड़ा भी बोलते हैं ना फायर, बोलते हैं ना सर्किट, बोलते हैं ना क्लोज होता है, अगर थोड़ा भी करंट फ्लो होता है तो डायरेक्टली ये फ्यूज़ ऑटोमेटिकली बंद हो जाता है। तो वी हैव लर्न अबाउट दिस फ्यूज़ वायर इन द प्योर एज सून एज द हाई करंट फ्लो इन द सर्किट, अगर ज़्यादा हाई करंट फ्लो होता है तो फ्यूज़ वायर मेल्ट होता है एंड द ब्रेक्स द सर्किट एंड अवे मिस एंड एनी मिसहैप इज़ अवॉइडेड। क्या हो जाता है, किसी भी तरह का मिसहैप, बोलते हैं ना कुछ भी अलग करंट अगर सराउंडिंग में फ्लो होने वाला रहता है तो डायरेक्टली क्या हो जाता है, मिसहैप अवॉइड कर देता है पूरा करंट। नहीं तो पूरे घर में क्या हो सकता है, करंट फैल सकता है या फायर कैच हो सकती है। या यू हैव सीन सम ऑफ दैट टाइम इन द वॉल और इन सम ऑफ द इक्विपमेंट डायरेक्टली करंट्स आर इजीली कैचिंग। कभी कभार तुम लोग ऑब्जर्व करते हो कि वॉल में भी करंट हो जाता है। तो क्यों वॉल में करंट होता है, क्योंकि लाइव और अर्थिंग वायर दोनों एक साथ कांटेक्ट में आ जाते हैं, या वायर्स ब्रेक हो रहा, बोलते हैं ना कुछ वायर्स ओपन रहते हैं तो वो ओपन वायर्स क्या होते हैं, वॉल से कनेक्टेड रहते हैं। तो दिस थिंग वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट टाइम।